I told you, children, that Evans was a prisoner who was well known as Evans the Break because he had escaped from the prison 3 times. Now, this time he was in prison and wished to appear in O level German examination, and he got permission from the government to appear in exam. But the prison's member, the governor, and he got two more officers, Jackson and Stephen, were very strict this time, and they were keeping an eye to him that he should not escape from that prison. So in morning when Jackson comes to Evans, he says that remove all your beard and have a shave, and says that remove your hat. But Evans just ask for a permission that he wants to wear it because it was a lucky charm for him. So now let's see what happens in the story. Jackson permits him. Just this once, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving. सिर्फ एक ये चीज़ मैं मान रहा हूँ तुम्हारी इवांस, शर्ली टेम्पल एक एक्ट्रेस हैं जिनके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, तो यहाँ पर जैक्सन उसको किस नाम से बुलाते हैं? शर्ली टेम्पल के नाम से इवांस को। और एक ही चीज़ थी इसकी इवांस की जो जैक्सन को बहुत हेट करते थे, वो लोडेड मने हेटेड, वो थे इवांस के लंबे लंबे बाल। एंड गेट शेविंग, और जल्दी शेविंग कर लो। At 8:45 the same morning that the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. 8:45 पे उसी मॉर्निंग को रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी अपने बैचलर फ्लैट से निकले ब्रॉड स्ट्रीट में और जल्दी जल्दी कारफाक्स की तरफ चलने लगे। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long blank overcoat and a shallow-crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. वेदरमैन मतलब रिपोर्ट ने वेदर बताया था न्यूज़ में कि टेम्परेचर बहुत लो रहने वाला था अर्ली जून में, इसलिए उन्होंने ओवरकोट ब्लैक कलर का पहना था और एक शैलो क्राउन, एक गोल राउंडेड हैट पहन रखी थी जो कि उनको प्रोटेक्शन दे रही थी जो हल्की हल्की बारिश ड्रिजलिंग हो रही थी बाहर उससे। मतलब उनका हैट और उनका ओवरकोट उनको बचाए हुआ था हल्की बारिश से, और जो कि अभी आधे घंटे पहले शुरू हुई थी, और अब उनके चश्मे के जो मोटे लेंसेज थे उस पर हल्की ड्रिजलिंग वो चारों फैल रही थी। In his right hand he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examinations board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the Women's Guild that afternoon on the book of Ruth and a current copy of the Church Times. राइट हैंड में उन्होंने एक ब्राउन कलर का सूटकेस पकड़ा हुआ था जिसमें जो भी उनको ड्यूटी के लिए सारा सामान चाहिए था, जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ उसमें रखा था, जिसमें एक एनवेलप में सील्ड क्वेश्चन पेपर रखा था, एक येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म जो उनको फिल करना था वो रखा था, एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से उनको ऑथेंटिकेशन कार्ड मिला था, आईडी कार्ड वो मिला रखा था, एक पेपर नाइफ थी पेपर कट करने के लिए, और एक बाइबल थी। शायद उनको वीमेंस गिल्ड पर बुक ऑफ रूथ के ऊपर कई आफ्टरनून में कुछ स्पीच देनी थी, इसलिए उन्होंने साथ में बाइबल रखी थी, और लेटेस्ट कॉपी द चर्च टाइम नाम के एक न्यूज़पेपर की कॉपी रखी थी। द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM। 2 घंटे का जो ये जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम था ओ लेवल, वो 9:15 पे स्टार्ट होना था। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. Evans ने अपने फेस पर शेविंग क्रीम लगा ली थी। लेदरिंग का मतलब झाग बनाना होता है, और वो उसको चेहरे पे रगड़ रहा था ताकि झाग बन जाए अपना बियर्ड साफ करने के लिए, शेविंग करने के लिए। जब स्टीफन्स अंदर आया 2 छोटे छोटे स्क्वायर टेबल लेकर, और उनको एक दूसरे के अपोजिट रख दिया। न जो स्पेस था बंक में, एक दीवार की तरफ और एक दीवार की तरफ अपोजिट साइड।
स्टोन वॉल। नेक्स्ट स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स। फिर 2 हार्ड चेयर्स भी लेकर आया। द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर। जो एक थोड़ी सी सही थी चेयर, उसको दरवाजे के पास रख दिया, और जो थोड़ी ख़राब थी उसको दूसरी ओर रख दिया। जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योर सेल्फ लैडी। लैडी कहते हैं यंग लड़के को। जैक्सन फाइनली वार्निंग देने के लिए आया इवांस को, अब कि बिहेव योर सेल्फ, क्योंकि प्रॉपर रहना इवांस, तुम्हारे लिए पूरी तैयारी है। वो एकदम वार्निंग दे के गया। इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड। इवांस उसकी ओर घूमा और सर हिलाया कि इट्स ओके, मैं ठीक से रहूँगा। एंड दीज, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स ऑफ, और ये जो पिनअप्स होते हैं, जो दीवार पे उसने कागज़ वगैरह पेंटिंग या कुछ भी चिपका रखा था, पोस्टर वगैरह, उन पिनअप्स को इशारा करके कहा जैक्सन ने कि ये सारा कुछ हटा देना यहाँ से। इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन। इवांस फिर उसकी ओर घूमा और सर हिलाया। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे, मैं इनको हटाने ही वाला था। अ मिनिस्टर इजंट ही, मतलब मेरा जो इन्विजिलेशन करने आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम लेने आ रहे हैं, वो एक मिनिस्टर हैं, है ना। द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन जो मेरे साथ बैठने आ रहे हैं, जो व्यक्ति, वो कोई कहीं के मिनिस्टर है ना, आई मीन। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। और तुमको ये कैसे पता चला, जैक्सन ने ये शांति से पूछा। वेल, आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, एंड आई कुड नॉट हेल्प। मुझे कुछ फॉर्म्स साइन करने को दिए गए थे, वो जो दिए गए थे उस पर मैंने साइन किया था, और मैंने हेल्प, मतलब आई कुडंट हेल्प, मतलब मैं, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पढ़ लिया था कि कौन आ रहा है यहाँ पे। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक। अब चूंकि वो शेविंग कर रहा था, तो रेजर से उसने हल्का सा गाल पे अपने खींचा। एंड लेफ्ट अ नीट स्वैद इन द वाइट लेदर। पूरे चेहरे पे उसके झाग लगा हुआ था, और हल्का सा जब उसने खींचा गाल पे, तो वो नीट हिस्सा गाल का उसके नज़र आ रहा था। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, मेरे को यहाँ पर बग क्यों किया गया है इस सेल के अंदर। बग का मतलब होता है कि कोई डिवाइस वगैरह लगा के रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है। ही नॉडेड हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर। फिर उसने अपना सर हिला के एक पॉइंट की तरफ इशारा किया ऊपर डोर पे, जहाँ पर एक डिवाइस, एक माइक्रोफोन लगा रखा था इन लोगों ने। तो वो पूछ रहा था कि आखिर माइक्रोफोन लगा के या ये डिवाइस लगाकर मेरे को बग क्यों किया जा रहा है यहाँ। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन। अब चूँकि जैक्सन ने देखा कि ये जो माइक्रोफोन इन लोगों ने छुप के लगाया हुआ है, छुपा के, ये तो इसकी नज़र में आ गया, तब उसने बड़बड़ाया कि कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया गया है, मतलब नीटली नहीं किया गया है कि छुपा के ठीक से लगाते। उसकी आँख के सामने आ गया। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू। ऐसा क्या है यहाँ पे, बग क्यों किया जा रहा है मेरे को, क्या वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं कुछ कोशिश करने जा रहा हूँ, कुछ भागने की क्या। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, नो बडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू। वो कोई चांस नहीं लेना चाहते इवांस, और जो भी इंसान होश में होगा वो तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेगा। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, कौन ये सुनने जा रहा है। वैसे ये जो माइक्रोफोन लगा रखा है, तो मेरी और एग्जामिनर की जो बातचीत हो रही है उसको कौन सुनने जा रहा है। आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लैडी। सुनो यंग बॉय, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सुनने जा रहा है तुम्हारी बातें। इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, ये बातें कौन सुनेगा, गवर्नर खुद, जो प्रिजन के गवर्नर हैं। ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच, वो ज़रा भी तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते हैं। एंड नॉर डू आई, और ना ही मैं विश्वास करता हूँ तुम पर। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक इवांस, सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर। मतलब मैं तुम्हें एकदम एक बाज की तरह देखता रहूँगा, ऑब्जर्व करता रहूँगा इवांस। सो कीप योर नोज क्लीन, मतलब अपने आप को किसी परेशानी से दूर ही रखना, मतलब कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। क्लियर। ही वॉक टूवर्ड्स द डोर, और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ निकल गया। इवांस नॉडेड, उसने सर हिलाया इवांस ने। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनेन। उसने ऐसा सोच रखा था कि हाँ, उसके लिए ये सब इंतज़ाम तो किया ही जाएगा। और दूसरे नंबर की हैंडकरचीफ यानी रुमाल साफ़ सुथरा वहाँ पे बंक पे रखा था, नीटली फोल्डेड था, वाइट कलर के लिनेन का बना हुआ। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, अगेन जैक्सन ने टोका उसको। एक और बात कहनी है आइंस्टीन। ये अलग अलग नामों से उसको बुलाया करते हैं जैक्सन, क्योंकि ये दोनों पुराने एनिमीज रहे हैं, और जैक्सन के ही प्रिजन ऑफिसर जब थे तो ये 3 बार भाग चुका है वहाँ से, जेल से।
या व्हाट्स दैट, क्या बताइए क्या बात है। गुड लक ओल्ड सन, गुड लक। अब इन्होंने फिर क्या कहा जैक्सन ने इवांस को, ओल्ड सन, क्योंकि इनकी पुरानी जान पहचान है। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स द रेवरेंड एस मैकलीरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक। प्रिजन के मेन गेट के पास लिटिल लॉज में रेवरेंड एस मैकलीरी एंटर कर चुके थे। उन्होंने विजिटर्स बुक में नीटली अपना नाम साइन किया एंड देंस वॉकड साइड बाय साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग। और फिर एक प्रिजन ऑफिसर के साथ एक्सरसाइज यार्ड से डी विंग की तरफ साइलेंटली चले आ रहे थे। डी विंग वो जगह है जहाँ पर, वो सेल है जहाँ पे इवांस को रखा गया है। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई जैक्सन, डी विंग में उनका स्वागत किसने किया, जैक्सन ने। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक, विंग के बाहरी दरवाजे को अनलॉक किया गया और जब मैकलीरी अंदर चले गए एंड लॉक बिहाइंड देम, और फिर उसको लॉक कर दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, इसी तरह इनर डोर के साथ भी किया गया। एंड मैकलीरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और फिर जैक्सन ने मैकलीरी को स्टीफन के हवाले कर दिया। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, जैक्सन ने पूछा स्टीफन से, तुमने रेजर ले लिया क्या उसका। स्टीफन्स नॉडेड, हाँ स्टीफन ने सर हिला के कहा कि हाँ उसने रेजर ले लिया है। वेल कीप योर आइज स्किन्ड क्लियर, मीन्स अब क्या कह रहे हैं जैक्सन स्टीफन से कि अपनी आंखें बिल्कुल चौकन्नी रखना, उस पर एकदम बाज की तरह नज़र रखना, वो कुछ भी कर सकता है। स्टीफन्स नॉडेड अगेन एंड मैकलीरी, स्टीफन्स ने फिर से हिलाया कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा। और मैकलीरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स फॉलोड हिज न्यू गाइड एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर वेयर स्टीफन्स ओपन द पीप होल एंड लुक्ड थ्रू। मैकलीरी आयरन की स्टेयर्स को चढ़ रहे थे अपने नए गाइड यानी स्टीफन्स को फॉलो करते हुए। स्टीफन्स आगे आगे चढ़ रहे थे और मैकलीरी पीछे पीछे। क्लैंगिंग अप मतलब आयरन स्टेयर्स पे चढ़ रहे थे तो उनके जूते जब टकरा रहे थे आयरन स्टेयर्स से तो क्लिंग क्लिंग की आवाज़ आ रही थी, टंग टंग की। और फिर वो लोग सेल डोर मतलब प्रिजन में जिस सेल में इवांस था उसके डोर पर पहुंच गए। वेयर स्टीफन्स ओपन द पीप होल, जहाँ पे उसने पीप होल से की होल से झांका अंदर की तरफ और बताया दैट्स हिम सर, वो वहाँ पर है सर। इवांस फेसिंग द डोर सैट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स, जो दो टेबल अपोजिट लगे हुए थे इवांस का मुंह डोर की तरफ था और वो वहाँ बैठ गया था। His whole attention riveted to a text book of elementary German grammar, उसका सारा अटेंशन कहाँ था, एक टेक्स्ट बुक उसने खोल रखी थी जो एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की थी। Stephens took the key from its ring and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. स्टीफेंस ने की रिंग में से निकाली और सेल लॉक जो था वो मेटलिक ट्वैंग की आवाज़ के साथ लॉक हो गया पूरा सेल, मतलब उसमें लॉक लग गया उसने जब की घुमाई तो। नाउ इवांस वॉज इनसाइड विथ मैकलीरी फॉर एग्जामिनेशन।